So are you all ready with your EVS books? Take out your EVS books. Today we will be starting with a new chapter. Which chapter we will be starting from? Can anyone tell me? Chapter 7. Okay, chapter 7. And what is the name of chapter 7? Safety rule. Huh? Safety rule. Okay, safety rule. We will be starting from chapter 10. We need shelter. So take out page number 41 in your EVS books. Chapter 10, We Need Shelter, page 41. First of all, we will be writing the date over here. जहाँ पे chapter 10 लिखा है वहाँ पे हम date लिखेंगे. And what is the date today? September 17. September हम कैसे लिखते हैं? S-E-P. September. Then we will write 17. 17 सितंबर को हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है एंड 2020. ओके, मैम विल रीड द चैप्टर. आप मैम के साथ ही चैप्टर रीड करोगे. मैम के साथ आप चैप्टर रीड करोगे और अगर मैम कोई वर्ड को किसी वर्ड को मैम विल टेल यू टू अंडरलाइन, देन यू हैव टू अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर वर्ड. We need shelter. What is the means of shelter? Can anyone tell me the meaning of shelter? हाँ, if you know the answer please raise your hand बेटा, अगर आपको shelter का meaning पता है. Arnav knows the answer. Yes Arnav. Wait बेटा. Yes Arnav, now tell me. Ma'am, shelter means home. Yes. ओके, मैम बताती हैं आपको. शेल्टर मीन्स अगर हमें कहीं भी किसी जगह पे कोई प्रोटेक्शन मिल रही है. ओके, शेल्टर मीन्स हमें किसी भी लाइक यू आर लिविंग इन एन होम, आप घर पे रह रहे हो इन अ होम. सो व्हाट इज हैपनिंग? प्रथम बेटा, यू हैव टू यूज बोथ योर ईयरफोन्स एंड सेम राघव. राघव, you have to use both earphones. Shelter means to get protection from something. किसी चीज से अगर हम बच रहे हैं. Example, if you are living in a home, आप घर पे रह रहे हो, then what is happening over there? You are safe. आप बिल्कुल safe हो. No matter if it is sunlight there, बहुत ज्यादा धूप है या it is raining, home is protecting you. आपका घर आपको बचा रहा है ना, from bad weather and from each and everything. That means house gives us shelter. Okay, जब हम जहाँ पे हम रहते हैं वो जगह हमें प्रोटेक्ट करती है. Think about animals. Just think, if the like dogs are roaming, अगर dogs बाहर रोड पे घूम रहे हैं, प्रथम pay attention over here. You are not allowed to talk during the class. And you have to use both your earphones. So like if dogs are roaming, अगर dogs बाहर घूम रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा what is happening to them? क्या होता है? If it is raining, अगर बहुत बारिश हो रही है तो क्या होगा? हाँ, वो फिर प्रोटेक्शन ढूंढते हैं, मीन्स वो कहीं छिप जाते हैं जाके, या वो कभी कभी भीग जाते हैं. एंड इफ इट इज टू हॉट, अगर बहुत हॉट है, सनलाइट बहुत तेज है बाहर, तो उनको गर्मी लगती है, राइट? And if it is too cold,
लाइक विंटर्स में यू आर लाइक प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ. आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो? You use blankets, quilts, heaters, right? But they are not having anything. So basically the thing is house is protecting you. आपका घर आपको हर चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है. You are safe under the four boundaries. अगर आप रूम में हो अपने तो no matter what is happening outside, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, आप अपने घर पे सेफ हो. अगर बारिश आ रही है, इट इज रेनिंग, देन नो प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. अगर बहुत हॉट है, बहुत कोल्ड है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है. सिमिलरली सी, टू किड्स आर देयर. यहाँ पे टू किड्स हैं एंड व्हाट आर दे सेइंग? सी व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस these birds are making. Can anyone tell me what is the like house of bird known as? बर्ड के हाउस को हम क्या कहते हैं? Can anyone tell me? Please raise your hand. Yes, Raghav. Nest. Very good, Raghav. Everyone clap for Raghav. देखो ये नेस्ट है, राइट? नेस्ट में लाइक बर्ड्स को भी एक होम चाहिए रहने के लिए, वेयर दे विल लिव. अगर वो मॉर्निंग से इवनिंग में दे आर रोमिंग हियर एंड देयर, वो इधर उधर घूम रही हैं, दे नीड टू टेक रेस्ट, उन्हें भी आराम करना है. दे हैव टू ले देयर एग्स, they have to hatch their eggs. Where they will do this? In their nest, in their home. Similarly, this nest is giving them shelter. देखो ये bird है, ये nest bird को safe रख रहा है. This nest is saving the bird. See, bird के eggs हैं ये. Can you see these eggs? अगर ये बर्ड कहीं भी एग्स अपने रख देगी, these eggs will not be safe. ये एग सेफ नहीं होंगे, है ना? Any animal can eat them, can destroy them, can harm them. तो उसने वहां पे बिल्कुल अपने एग्स को सेफ रखा है, अपने शेल्टर में, अपने होम में. Like birds and other animals, we also need a house to live in. बर्ड्स की तरह हमें भी एक हाउस चाहिए रहने के लिए. अंडरलाइन द वर्ड हाउस, अंडरलाइन द वर्ड ब्यूटीफुल. अगर मैम कोई वर्ड आपको अंडरलाइन कराती हैं, दिस मीन्स यू हैव टू लर्न दैट वर्ड. ओके, आपको वो वर्ड की स्पेलिंग्स लर्न करनी है. Okay, a house gives us shelter. हाउस हमें शेल्टर देता है. शेल्टर मीन्स बेटा प्रोटेक्शन. हाउस हमें सेव कर रहा है. ओके, हाउस इज गिविंग अस शेल्टर. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. जैसे कि अभी मैम ने आपको बताया है, हीट से सेव कर रहा है, बहुत गर्मी है तो भी हमें सेव कर रहा है, कोल्ड है, एंड इवन फ्रॉम रेन. From wild animals. Yeah. Wild animals. अगर कोई एनिमल आपके घर पे अब ऐसे नहीं आएगा ना, that animal has to knock the door, isn't it? हाँ? No, it's not like that. अगर आप बाहर कहीं भी रहोगे, आपको कोई एनिमल हार्म कर सकता है, बट आप होम में हो, आप हाउस में हो, तो यू आर सेफ फ्रॉम स्टॉर्म. बहुत लाइक इट इज टू विंडी, बहुत तेज हवा चल रही है. It also protects us from thieves. Thieves से भी आपको प्रोटेक्ट करता है. Thieves क्या होते हैं? What are thieves? चोर. कोई आपके घर में ऐसे, अगर आप कहीं भी आपने लाइक एग्जाम्पल, आप अपना एक स्कूल बैग आपने अपने हाउस के बाहर रख दिया, तो कोई भी उठा के ले जा सकता है ना वो, राइट? बट अगर आपने अपना स्कूल बैग या अपने बहुत प्रीशियस क्लोथ्स, अपना फेवरेट फूड आइटम
अपने होम में रखा है, तो नो वन विल ईट इट, कोई उसको नहीं ईट करेगा, कोई उसको नहीं लेगा, राइट? तो हमारी हमारी थिंग्स भी हमारे होम में सेफ हैं. एंड स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे मीन्स जो एनिमल्स ऐसे बाहर घूमते रहते हैं, लाइक डॉग, कैट. नाउ लुक, टाइप्स ऑफ हाउसेस. हाउस might be of two types. हाउस कितने टाइप्स के होते हैं श्रेष्ठ? टू टाइप्स. टू टाइप्स के हाउस होते हैं. एंड व्हाट आर दोस टू टाइप्स? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. दो तरह के घर होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. वेरी गुड. क्या होता है कच्चा मीन्स? कच्चा हाउस क्या होता है? जो बहुत वीक होता है, कच्चा होता है मीन्स इजीली, बहुत जल्दी से वो इजीली बन सकता है एंड वो इजीली टूट भी सकता है. एंड पक्का हाउस इज जैसे आपका हाउस है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग. ऐसा है क्या कि अगर स्टॉर्म या विंड, बहुत तेज हवा चली, तो आपका घर गिर जाता है क्या? हुआ है ऐसा कभी? हाँ, नो. ओके. क्या ऐसा हुआ है कि बारिश आ रही है, इट इज रेनिंग एंड वाटर इज कमिंग इनसाइड योर होम, except from that open place? No. So that means your house is pakka house. Let's read more about kacha and pakka house. A kacha house is made of things like wood, straw, bamboo, mud and dry leaves. देखो, कैन यू सी दिस हाउस? क्या आपको ये हाउस दिख रहा है? देखो दिस वन, दिस इज नोन एज कच्चा हाउस. ओके. कच्चा हाउस मीन्स एक ऐसा होम जो वुड से बना है. देखो यहाँ पे वुड यूज हुई है. आपको ये अंडरलाइन ऐसे वाला नहीं करना है सर्कल हाउस में, जैसे मैम इज शोइंग यू. कैन यू सी दिस वुड? वुड मीन्स लकड़ी. वुड यूज हुई है, स्ट्रॉ यूज हुए हैं, बैम्बू, मड एंड ड्राई लीव्स. ओके. कच्चा हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. मोस्टली विलेजेस में होते हैं. विलेजेस मीन्स गांव में. कच्चा हाउस. अच्छा, इफ यू आर गोइंग एनीवेयर, इफ यू आर गोइंग समवेयर विद योर पेरेंट्स, आप कहीं जा रहे हो, सो हैव यू सीन दिस कच्चा हाउसेस? हमें रास्ते में ऐसे हाउस मिलते हैं ना, जो बहुत छोटी सी जगह में बने होते हैं और ड्राई लीव्स से बने होते हैं या मड से, मिट्टी से बने होते हैं. छोटा सा वहां पे कहीं कहीं बैम्बू लगी होती है, बैम्बू स्टिक्स एंड स्ट्रॉ. दिस इज स्ट्रॉ. हैव यू एवर सीन कच्चा हाउस? श्रेष्ठ हैज सीन. हु एल्स? और किसने देखा है कच्चा हाउस? बेटा, इफ यू आर गोइंग समवेयर, आपको रास्ते में मिलता है ना, छोटे छोटे से, बहुत छोटे से रूम, एक घर होता है मड से बना हुआ या स्ट्रॉ से. अब आप वेन एवर यू आर गोइंग नेक्स्ट टाइम विद योर फैमिली, जब भी आप, अगर आप कहीं जाओगे नेक्स्ट टाइम, तो यू हैव टू सी. ओके. रास्ते में हमें बहुत सारे कच्चा हाउस मिलते हैं. ओके. प्रथम हैज सीन. वेरी गुड. And even whenever like there is a huge like farm, तो वहां पे भी कच्चा हाउस होता है. मोस्टली दे आर फाउंड इन विलेजेस. मोस्टली हमें कच्चा हाउस विलेज में मिलता है. ओके. यू हैव टू लर्न. ये आपको लर्न करना है कि कच्चा हाउस किस किस से बना होता है. वुड, स्ट्रॉ, बैम्बू, मड एंड ड्राई लीव्स. एंड हमें कच्चा हाउस कहाँ पे मिलता है? इन विलेजेस. ओके. नाउ नेक्स्ट इज पक्का हाउस. पक्का हाउस कहाँ पे होता है? टाउन्स में एंड सिटीज में, जहाँ पे आप रह रहे हो. द होम यू आर लिविंग इन, दैट इज अ पक्का हाउस. टाउन्स में एंड सिटीज में.
और ये पक्का हाउस किससे बना होता है, किस चीज से बना हुआ होता है? सीमेंट, ब्रिक, आयरन, कंक्रीट एंड वुड। ओके, सीमेंट आपको पता है दैट इज ग्रे इन कलर। जैसे अगर हमारा सीमेंट के बाद पेंट होता है घर पे, तो जैसे अगर इफ योर वॉल्स आर ब्लू इन कलर, रेड इन कलर, तो उससे पहले सीमेंट होता है। ब्रिक्स, ब्रिक्स तो यू ऑल मस्ट हैव सीन, यू मस्ट हैव सीन ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स ईट। आयरन, iron that makes the frame of your house. Concrete and wood. And Saina is a girl that lives in a pakka house. It is a bungalow. Kacha house are also called huts. कच्चा हाउस को हम हट भी कहते हैं. ओके, कच्चा हाउसेस आर ऑल्सो कॉल्ड हट, झोपड़ी. यू मस्ट हैव ड्रॉन इन योर आर्ट बुक्स. आपने अपनी आर्ट बुक्स में बनाया होगा हट. ओके, a bungalow usually has a large garden in front. बंगलो क्या होता है? देखो ये एक हाउस है और इसके पहले इसके फ्रंट में, इसके आगे एक बहुत बड़ा गार्डन होता है. कैन यू सी दिस गार्डन? दिस इज नोन एज बंगलो. ओके, अब बेटा पक्का हाउसेस आर ऑल्सो 4 टाइप्स. पक्का हाउस भी 4 टाइप का होता है. क्या होता है पक्का हाउस? मीन्स आपका घर जहाँ पे आप रहते हो. Please look carefully over this. Like your house is having only one. Like they are not having different stories or different floors. सिर्फ आपका घर देखो, बस नीचे नीचे का आपका घर है. इसके ऊपर सिर्फ डायरेक्ट आपका टेरेस है, आपकी छत है. ऊपर घर नहीं बना हुआ है. Can you see this? Only one, that is ground floor is there. One means single. One means single. सिंगल स्टोरीड हाउस. सिंगल मतलब एक स्टोरी है बस, इसमें बहुत सारे फ्लोर्स नहीं है. तो दीज हाउसेस आर नोन एज सिंगल स्टोरीड. एंड सी इफ यू आर हैविंग टू फ्लोर्स, मैम का हाउस है, कैसा है वो? देखो यहाँ पे एक फ्लोर हो गया, दैट इज अ ग्राउंड फ्लोर. ओके, इसके बाद ऊपर भी एक फ्लोर और है, ऊपर एक फ्लोर और है, फिर ये टेरेस है. ओके बेटा, ये टेरेस हो गया खुला हुआ. सो ये फिर ये कैसा हाउस है? दिस इज नोन एज मल्टी स्टोरेड. मल्टी मीन्स मोर देन वन. यू कैन राइट ओवर हेयर, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो. सिंगल मीन्स वन एंड मल्टी मीन्स मोर देन वन. तो अगर मोर देन वन है तो दैट मीन्स मल्टी स्टोरेड हो गया वो. वन से ज्यादा फ्लोर्स हैं अगर आपके घर पे. अगर आप ऐसे बोलते हो मम्मा मैं ऊपर हूँ, हाँ, या मैं ऊपर वाले रूम में हूँ, या मैं नीचे वाले रूम में हूँ, दैट मीन्स योर हाउस इज मल्टी स्टोरेड हाउस. ओके, एंड देन अपार्टमेंट. अपार्टमेंट क्या होता है? जब आप अगर बिल्डिंग्स में रहते हो, आप बोलते हो ना कि हम तो बिल्डिंग में रहते हैं. आई एम नॉट हैविंग अ हाउस बट आई एम हैविंग अ फ्लैट. मैं तो फ्लैट में रहती हूँ, या मैं फ्लैट में रहता हूँ. हाँ, मेरी तो बिल्डिंग है बहुत बड़ी. दिस सी, इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं? 1 2 3 4 5. सो दिस इज अ मल्टी स्टोरीड हाउस. ये मल्टी स्टोरीड हो गया. ओके, एंड और आपका 3rd फ्लोर है. आई एम लिविंग इन दिस फ्लोर. आई एम लिविंग इन दिस फ्लोर. सिर्फ मेरा ये वाला फ्लोर है. यहाँ पे भी कोई और रहता है, यहाँ पे भी कोई और रहता है. एंड इन दिस फ्लोर्स ऑल्सो सम अदर फैमिली लिव्स. कोई और फैमिली रहती है. Then these are known as apartment building. Kaina, quickly open page 42. These are known as apartment buildings.
अपार्टमेंट. ओके. मल्टी स्टोरेज में बेटा हमारी फैमिली रहती है. मे बी आई एम लिविंग, माई पेरेंट्स आर लिविंग इन ऑल द फ्लोर्स, और माई अंकल, माई आंट, माई कजन्स माइट बी लिविंग. अगर फैमिली रहती है देन दिस इज अ मल्टी स्टोरेज. और ये पूरा एक ही घर है, वन हाउस, बट यहाँ पे डिफरेंट फ्लैट्स पे डिफरेंट फैमिलीज रहती हैं या डिफरेंट फ्लोर्स हैं. देन दीज आर नोन एज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स. दैट माइट बी एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है, वहां पे बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं. डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट फ्लैट्स हैं, डिफरेंट फ्लोर्स हैं, डिफरेंट फैमिलीज हैं. दैट इज नोन एज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स. एक बहुत बड़ा हाउस है, ठीक है, बहुत बड़ा सा हाउस है, और उसके आगे बहुत बड़ा गार्डन है. देन दैट इज नोन एज बंगलो. व्हाट इट इज नोन एज? बंगलो. That might be single storage or multi storage. Is it clear to everyone? Is it clear? Okay. Now Krishna and Alankriti will tell me. Beta, in which house do you live? Krishna and Alankriti, quickly tell me. Krishna, kacha house or pakka house? You all are living in pakka house, okay? आप पक्का हाउस में रहते हो. Because your house is not made of dry leaves, straw. That means पक्का हाउस. नाउ पक्का हाउस भी कौन सा वाला पक्का हाउस? अपार्टमेंट, बंगलो, सिंगल स्टोरेज और मल्टी स्टोरेज. These are the types of पक्का हाउस. Let's read more about this chapter. Types of roofs. Roofs means छत. आपकी छत कैसी है? देखो, that might be flat. फ्लैट मीन्स बिल्कुल सीधी भी हो सकती है आपके घर की छत. टेरेस. फ्लैट मीन्स बिल्कुल सीधा है. मैं यहाँ पे जाती हूँ ऊपर, काइट उड़ाते हैं हम, हाँ, या वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले फुटबॉल. दिस माइट बी द फ्लैट रूफ. एंड दीज आर नोन एज स्लोपिंग रूफ. स्लोप क्या होता है? स्लोप मीन्स देखो ऐसा, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ऐसा वाला. तो किसी किसी के, हमारे किसी हाउस में स्लोपिंग रूफ होती है. इफ इट इज रेनिंग, अगर रेन हो रही है, आई कैन नॉट स्टैंड ओवर हेयर. मैम यहाँ पे स्टैंड नहीं कर सकती हैं. अगर इट इज रेनिंग तो सारा वाटर ऐसे दैट विल फ्लोट. ओके, ऐसे वाटर नीचे आएगा. These are known as sloping roof. Usually all the huts are having sloping roof. Flat roof, if I am playing, I'm standing, I'm sitting on my roof. देखो ये स्टैंडिंग मतलब ये बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे हम खेल भी सकते हैं, जा सकते हैं रूफ पे अपनी. Places with heavy rains and snowfall have house with sloping roof. Usually हम सबके घर की रूफ फ्लैट होती है. ओके, ऐसी प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा रेन होती है या स्नो होती है, तो वहां के हाउस की रेन, वहां के हाउस में जो रूफ होती है वो स्लोपिंग होती है. क्यों? बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, बहुत ज्यादा बारिश, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा बारिश से वाटर विल, यहाँ पे वाटर रिटेन नहीं करेगा, यहाँ पे वाटर इकट्ठा नहीं होगा. ऑल द वाटर विल float like this. This helps and snow and rain water to slide down the roof. जैसे कि मैम ने आपको बोला, सारा वाटर, जितना भी वाटर है, that will slide down. And we all are having flat roofs. Why we are having flat? Usually there are gullies at the corners. So if the water is gathering on a roof, that will slide down through these gullies over here. Is it clear? Okay, now coming to the next topic, good house. A house, very important.
that is neat and clean is called a good house. अगर आपका हाउस बिल्कुल क्लीन है, you are throwing the garbage outside the house, you are having lots of plants, आपके हाउस में plants हैं, okay, that are creating positive vibes, that are creating a lot of good atmosphere, and you are having windows, sunlight, proper ventilation, then your house is known as good house. Many doors and windows हैं, so that sunlight आ रही है, fresh air आ रही है, plants हैं, and dustbins हैं to throw the waste. Then that house is known as good house. Now, this is your homework, beta. What you have to do in this page, you have to draw and color a house found in place of heavy rain and snow. Heavy rain और snow की place पे हमें कैसा house मिलता है? Sloping roof. Sloping roof मतलब नीचे से आपका house कैसा भी हो सकता है, ऊपर से आप ऐसी एक roof बनाओगे, sloping वाली, ऐसे वाली roof. ओके, स्लोपिंग रूफ बनेगी, एंड आपको एक ऐसा हाउस ड्रॉ करना है, फिर आपको उसे बहुत ब्यूटीफुली कलर करना है, ठीक है? इन दिस वे यू हैव टू मेक अ हाउस. टेक आउट योर ईवीएस नोटबुक्स क्विकली. फर्स्ट पेज पे यू विल बी राइटिंग यूटी. आप पहले एक पेज फोल्ड करोगे जैसे हमने टर्म 1 के टाइम पे किया था. जहाँ पे आपका टर्म 1 फिनिश हुआ है, उसके बाद यू विल बी फोल्डिंग वन पेज, यू विल बी राइटिंग UT2. क्या लिखोगे आप उस पेज पे? क्या लिखोगे? UT2. UT2 लिखोगे आप पेज को फोल्ड करके एक फुल पेज पे. यू कैन डेकोरेट दैट पेज, यू कैन कलर दैट पेज, एनीथिंग यू कैन डू ऑफ योर चॉइस. ओके, आप UT2 लिखोगे एक पेज पे, फोल्ड करके पेज को अच्छे से डेकोरेट करके. देन ऑन द सेकंड पेज यू विल बी राइटिंग UT2 syllabus, and you will be leaving 2 pages. 2 pages means 2 sides. आपको एक 1 page leave करना है, 2 sides, or even you can leave 1 side only. 1 side only बेटा. UT2 syllabus लिखने के लिए आप 1 page leave कर दोगे, means 1 side. And we will be writing UT2 syllabus on that afterwards. मैम ने आपको क्या बताया? जहाँ पे आपका टर्म 1 फिनिश हुआ है, उसके बाद आफ्टर दैट आप एक पेज फोल्ड करके लिखोगे UT2, जैसे हमने टर्म 1 लिखा था. ओके, फिर आप नेक्स्ट पेज पे ये वाली हेडिंग लिखोगे UT2 सिलेबस, एंड यू विल बी लीविंग दैट पेज. वो पेज आप लीव कर दोगे, उस पे हम UT2 का सिलेबस लिखेंगे बाद में. ओके, देन फ्रॉम द थर्ड पेज you will be starting this work. थर्ड पेज पे आप लिखोगे, सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे chapter 10. then you will be writing the name of the chapter. We need shelter. then you will be writing next heading, that is content. फिर आप एक हेडिंग लिखोगे कंटेंट की. then start doing this work. कंटेंट है आपका रीडिंग एक्सप्लेनेशन, न्यू वर्ड्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस. दिस इज ऑल व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस. न्यू वर्ड्स के आगे यू विल बी राइटिंग इन द ब्रैकेट्स 10. दिस मीन्स हम 10 न्यू वर्ड्स लिखेंगे. देन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस. कंटेंट के बाद आप फिर कंटेंट लिखोगे यहाँ पे थर्ड पेज पे, एंड ऑन द फोर्थ पेज यू विल बी राइटिंग द हेडिंग, दिस हेडिंग, न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स.
On all the pages you will be writing date and class work. UT2 आप पेज फोल्ड करके लिखोगे, तो नो नीड टू डू एनीथिंग इन दिस, इसमें आप कुछ नहीं करोगे. ओके. UT2 सिलेबस जब मैम आपको लिखवाएंगी तब आप वो वाली डेट लिखोगे. कंटेंट मैम आपको आज लिखवा रही हैं, सो यहाँ पे आप आज की डेट लिखोगे. एंड व्हाट इज द डेट? 17th September. And in the right corner you will be writing CW, that means class work. New words is your homework, so you will be writing today's date, that is 17th September, and you will be writing over here homework, क्योंकि आप ये homework में लिखोगे. And this is your exercise, this is also your homework, so ये भी आप आज की date लिखोगे book में, and you will be doing this work as well. I hope it is clear. मैम ने आज आपको 4 pages का बताया है. पहले आप UT2 के लिए पेज फोल्ड करोगे, देन सिलेबस, देन कंटेंट, एंड देन न्यू वर्ड्स. कंटेंट से पहले यू विल बी राइटिंग द नेम ऑफ द चैप्टर. चैप्टर 10, वी नीड शेल्टर. Please write down this content in your notebooks on the 3rd page.